وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کی نشت ثانیہ اور احیاء کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس عظیم الشان کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلمی ہتھیار سے نوازا، اور آپ کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم کے خطاب سے نوازا۔ قلمی جہاد کے اس میدان میں آپ نے معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی، جن کے حرف حرف میں آسمانی روح بول رہی ہے۔ یہی وہ خزائن مدفونہ ہیں جن کے متعلق مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مسیح موعود آئے گا اور وہ مال لٹائے گا، لیکن لوگ لینے سے انکار کریں گے، لیکن جو لوگ لیں گے وہ ابد الآباد تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں خدا تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں آپ کی کتب کے تعارف پر مشتمل پروگرام کی ایک سیریز لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ان پروگرامز کی بدولت ہم آپ کے اندر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی معرکۃ الآراء کتاب کشتی نوح کا تعارف کریں گے۔ معزز ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو معرکۃ الآراء کتاب کشتی نوح ہے، اس کے لکھنے کی وجہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 6 فروری 1898 کو خواب میں دیکھا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کچھ فرشتے پودے لگا رہے ہیں، اور یہ پودے سیاہ رنگ کے ہیں، اور حضور فرماتے وہ چھوٹے بھی تھے اور بد شکل بھی تھے۔ حضور فرماتے میں نے بعض فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس قسم کے پودے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ طاعون کے پودے ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلے گی۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اکتوبر 1902 میں ہندوستان میں اور خصوصاً پنجاب میں طاعون پھیلی اور بڑے پیمانے پر پھیلی، تو اس کے انسداد کے لیے گورنمنٹ نے اس وقت ٹیکے کی جو مہم ہے وہ شروع کی، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک کتاب کشتی نوح جس کا نام ہے وہ تالیف فرمائی، اور اس کا نام آپ نے تقویت الایمان بھی رکھا اور دعوت الایمان بھی رکھا۔ اس کتاب میں آپ نے سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے اقدامات کی سراہنا کی، لیکن ساتھ ہی یہ آپ نے فرمایا کہ میرے جو متبعین ہیں، میرے جو تقوی شار متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، جو میری تعلیم پر پورا عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خدا تعالیٰ ایک رحمت کا نشان دکھانا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو ٹیکہ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں حضور نے اپنے متبعین کو جو حقیقی آپ کے تقوی شار ہیں ان کو ٹیکہ لگانے سے منع کیا، اور اس کی وجہ آپ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے فرمایا ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ جو تیری 4 دیواری کے اندر آئے گا میں اس کو بچا لوں گا۔ اور وہ تعلیم کیا ہے جس کی وجہ سے طاعون سے بچا جا سکتا ہے، وہ تعلیم بھی آپ نے اس کتاب میں درج فرمائی۔ معزز ناظرین، کتاب کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں
کہ یہ ताउन की जो वबा आई है, ताउन का जो अज़ाब आया है, इसकी वजह यह है कि लोग शोखियों और शरारतों में बढ़ गए हैं। और हुज़ूर ने यह भी फरमाया कि कुरान करीम में भी और तौरात के बाद सहीफ़ों में भी और हज़रत मसीह ने भी इसकी पेशगोई फरमाई थी कि जब वो मसीह आएगा, मसीह मऊद आएगा, उस वक्त में ताउन फैलेगी। दूसरी बात हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इसके बाद ये बयान फरमाई है कि अगर बाज़ लोग मेरी जमात के इस ताउन से फ़ौत हो जाते हैं तो इससे इस निशान आसमानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और हुज़ूर ने बयान फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के वक्त में भी बाज़ जो सहाबा है वो फ़ौत हुए। अगरचे जंग उनके लिए अज़ाब बन कर आया था, लेकिन वो तादाद में बहुत कम होता था और मोमिनीन की जो जमात है उनका नुकसान बहुत थोड़ा होता था। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि अगर हमारे बाज़ मुत्तबईन फ़ौत भी हो जाते हैं तो इस निशान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद हमारी जमात खारिक आदत तौर पर बढ़ जाएगी। इसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी सदाकत के लिए वइज़ल इशार उत्तिलत की आयत को पेश किया और फरमाया कि ये मेरी सदाकत की निशानी है कि इस दौर में ऊँटनियाँ बेकार हो गई और उनकी जगह रेल आ गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए कुसूफ़ और खुसूफ़ का निशान दिखाया और ज़मीन में ताउन फैल गया। इसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इस किताब में, यानी कश्ती नूह में, फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने का आदम हूँ और अल्लाह ताला ने आपको मुखातिब करके फ़रमाया इन्नी अरदतु अन अस्तख़लिफ़ा फ़ख़लक़तु आदम, यानी अल्लाह ने इरादा किया कि खलीफा बनाए तो उसने आदम को पैदा किया, यानी मुझे इस दौर में आदम के तौर पर पैदा फरमाया। हुज़ूर ने इस बात की वहाँ निशानदेही फरमाई है कि जिस तरह आदम अव्वल के दौर में फ़रिश्तों ने इतराज़ किया था, लेकिन अल्लाह ताला उनके इतराज़ से अपने इरादे से हटा नहीं था, अपने इरादे को आपने पूरा फरमाया था। इसी तरह अल्लाह ताला इस आदम, यानी मुझे जो अल्लाह ताला ने आदम करार दिया है, वो भी मेरे जो मकासद हैं वो पूरा करेगा और उसमें रुकेगा नहीं। इसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दौर का आदम करार दिया है, चनाचे आपको इल्हाम हुआ इन्नी अरदतु अन अस्तख़लिफ़ा फ़ख़लक़तु आदम। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस तरह आदम अव्वल के मौके पर फ़रिश्तों ने एतराज़ किया था, लेकिन फ़रिश्तों के एतराज़ के बावजूद अल्लाह ताला नहीं रुका था, अल्लाह ताला ने अपने मकसद को पूरा किया था। आगे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि मैं इस दौर का आदम हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए एक नई ज़मीन और नया आसमान बनाएगा। नई ज़मीन से आपने ये मुराद ली है कि अल्लाह ताला दिलों को पाक करेगा, यानी नेक दिल लोग मुझे अता करेगा। और नए आसमान से मुराद आपने ये लिया है कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से उसी के इज़्न से निशानात ज़ाहिर फरमा रहा है। आगे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वो तालीम भी बयान फरमाई है जिस पर चल के ताउन के अज़ाब से बचा जा सकता है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस किताब में उस तालीम को भी बयान फरमाया है जिसके मुतलिक आपने बयान फरमाया था कि उसकी पूरी पाबंदी से ताउन के अज़ाब से बचा जा सकता है। इस तालीम के सिलसिले में सबसे पहले आपने अल्लाह ताला के बारे में अपनी तालीम बयान फरमाई। आपने कहा कि आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला कादिर है, वो हय्यो क़य्यूम है और वह हर चीज़ पर कादिर है, वो वाहिद और ला शरीक है, वो सलीब पर चढ़ने से कासिर है, वो दुख दिए जाने से कासिर है, कोई उसको दुख नहीं दे सकता, कोई उसको सलीब पे नहीं चढ़ा सकता। ये हमारा खुदा है, ये हमारे खुदा की शान है। आगे हुज़ूर ने कुरान करीम के बारे में फ़रमाया कि तुम्हारे लिए एक ज़रूरी तालीम यह है कि कुरान को महजूर की तरह मत छोड़ो, कि तुम्हारी इसी में ज़िंदगी है। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बारहा ये बयान फरमाया है कि तमाम किस्म की भलाई और बेहतरी जो है ना वो कुरान करीम में है कि अल खैरु कुल्लुहु फ़िल कुरान, तमाम किस्म की भलाई और तमाम किस्म की जो बेहतरी है वो कुरान करीम में पाई जाती है। और आपने ये भी बयान फरमाया है कि कुरान करीम ने हकीकी और कामिल नजात की राहें खोली है, बाकी सब इसके ज़िल हैं। और आपने ये भी बयान फरमाया है कि नौ इंसान के लिए रोई ज़मीन पर अब कोई किताब नहीं मगर कुरान, और तमाम आदमज़ादों के लिए अब कोई रसूल और शफ़ी नहीं मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं किताब कश्ती नूह में कि अल्लाह ताला ने आपकी हिदायत के 3 ज़राए रखे हैं। सबसे पहले कुरान करीम है, इसके बाद सुन्नत का नंबर आता है और उसके बाद हदीस का दर्जा है। हुज़ूर फरमाते हैं कुरान करीम काज़ी है, ये हिदायत का पहला सरचश्मा है, इसमें ज़न का कोई पहलू नहीं है बल्कि यकीनी पहलू इसमें है और अल्लाह ताला ने इसकी हर लिहाज से हिफाजत का वादा फरमाया था। इसके बाद हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के बाद आपको सुन्नत का मकाम अता किया है, सुन्नत का ज़रिया आपको दिया है जिसके ज़रिए से आप हिदायत पाते हैं। और हुज़ूर फरमाते हैं कि सुन्नत का तशरीही मकाम है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जैसे कुरान करीम में हिदायत हुई कि आप नमाज़ पढ़ लें, 5 वक्त नमाज की हिदायत हुई या हुक्म हुआ, लेकिन कितनी रकात की तादाद होनी चाहिए ये तसरीह कुरान करीम में नहीं थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ेली रविश के ज़रिए हमें बताया कि रकात की कितनी तादाद होनी चाहिए। तो सुन्नत का जो वजूद है वो कुरान करीम के साथ साथ था, लेकिन हदीस वो चीज़ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो 150 साल बाद जमा की गई और उसका वजूद कुरान करीम के साथ नहीं था। तो ये सुन्नत और हदीस के माबैन हुज़ूर ने फ़र्क बयान फरमाया है कि सुन्नत का वजूद कुरान करीम के साथ साथ था और हदीस का जो वजूद है वो 150 साल बाद मार्ज़ वजूद में आया। हुज़ूर फरमाते हैं बहुत सारे तारीख़ी, इल्मी, तारीख़ी और फ़िक़ही उमूर ऐसे हैं जिनको हदीस ने खोला। हाँ, ये बात याद रखनी चाहिए कि हदीस को हम तभी मान सकते हैं जब वो कुरान करीम के मुखालिफ और मुआरिज़ ना हो, लेकिन अगर वो कुरान करीम के मुवाफ़िक़ है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बेशक मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ ही क्यों ना करार दिया हो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जिस हदीस का मुसद्दिक़ कुरान करीम हो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। इसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब कश्ती नूह में कुरान करीम की तालीमात और इंजीली तालीमात का एक मवाज़ना पेश करते हैं। वह एक लंबा मवाज़ना है, 2-3 बातें, अहम बातें मैं उसमें आपके सामने पेश कर देता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान करीम आपको इंजील की तरह ये नहीं कहता कि नामहरम औरतों को शहवत की निगाह से ना देखो, बाकी सब हलाल है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में बिल्कुल ना देखो, ताकि आप ठोकर से बच जाओ, और अपनी नज़रें नीचे रखने की हिदायत कुरान करीम देता है। दूसरा, हुज़ूर फरमाते हैं कि कुरान करीम आपको ये नहीं कहता इंजील की तरह कि इतनी शराब मत पियो कि मस्त हो जाओ, बल्कि कुरान करीम कहता है कि इस उम्मुल खबाइस से बिल्कुल दूर रहो, वरना आपको खुदा ताला की राह नहीं मिलेगी और खुदा ताला आपसे कलाम नहीं कर सकता। तीसरी बात हुज़ूर बयान ये फरमाते हैं कि कुरान करीम आपको इंजील की तरह ये नहीं कहता कि सिर्फ़ अफ़ू से काम लो। कुरान करीम ये कहता है कि अगर अफ़ू करने से इस्लाह होती है, वो महल और मौका है इस्लाह का, तो अफ़ू से काम लेना चाहिए, दरगुज़र से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर अफ़ू और दरगुज़र से इस्लाह नहीं होती है तो फिर इंतकाम भी लेना चाहिए, फिर अज़ाब भी देना चाहिए, फिर सज़ा भी देनी चाहिए। तो ये कुरान करीम की जो तालीमात है उनका तफ़व्वुक़ है और उनका जो मवाज़ना आपने बयान फरमाया है इंजील की तालीमात के साथ, ये आपने उसका कुरान करीम की तालीमात का तफ़व्वुक़ यहाँ बयान फरमाया है। किताब कश्ती नूह में आगे हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की वजाहत बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे किन मानों में मरियम के लक़ब से नवाजा है। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि इहदिनस सिरातुल मुस्तक़ीम में ये बात बयान हुई थी कि इस उम्मत में बाज़ अफराद ऐसे होंगे जो गुज़श्ता अंबिया की नेमत पाएंगे। और हुज़ूर ने यह भी बयान फरमाया है कि सूरह तहरीम में ये बात बयान हुई थी कि इस उम्मत के बाज़ अफराद मरियम सिद्दीक़ा की मुशाबियत इख्तियार करेंगे, यानी सबसे पहले वो पाकीज़गी इख्तियार करेंगे और फिर उनमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह फूंकी जाएगी। तो हुज़ूर बयान फरमाते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे पहले मरियम की सिफ़त में रखा, मरियमी हालत में रखा, सिफ़ाती तौर पर मैं मरियमी हालत में रहा, और वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने मुझे ईसवी हालत और ईसवी सिफ़ात मुझे अता फ़रमाई। तो इस तरह मैं मरियमी हालत से ईसवी हालत की तरफ मुंतकिल किया गया। तो ये इस्तिआरतन है, ये मजाज़न है, ये मेटाफोरिकल है, ज़ाहिर में इसकी कोई सूरत नहीं है।
इसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब कश्ती नूह में 5 वक्त नमाज की पुरहिकमत फ़िलासफ़ी बयान फरमाई है। आप बयान फरमाते हैं कि इंसानी फ़ितरत को बला के वक्त 5 तग़य्युरात लाजिम आते हैं और उनके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें रखी हैं। सबसे पहले हुज़ूर बयान फरमाते हैं कि पहला तग़य्युर वो है जब आपको बला से इत्तला दी जाती है, यानी आपके नाम वारंट इशू हो जाता है, तो आपकी जो तसल्ली है, आपकी जो खुशहाली है, उसमें ज़वाल आने लगता है। तो इसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने नमाज ज़ुहर रखी है, जिसका वक्त भी ज़वाल आफ्ताब है। इसके बाद दूसरे तग़य्युर के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब आपको बला के करीब कर दिया जाता है, यानी वारंट के ज़रिए आपको पहले इतला दी, उसके बाद आपको हाकिम वक्त के सामने पेश किया जाता है। तो जब आप हाकिम वक्त के सामने पेश होते हो तो आपकी तसल्ली का जो नूर है वो जाता रहता है। तो इसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने असर की नमाज़ रखी है, जिसमें जो दिन का नूर है वो रुखसत होने लगता है। इसके बाद हुज़ूर बयान फरमाते हैं कि तीसरा तग़य्युर वो है कि जब आपके ख़िलाफ़ सारे गवाहान गवाही देते हैं, आप पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाता है और आपकी जो उम्मीद है रिहाई की वो सारी मुनक़ते हो जाती है, तो उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने मगरिब की नमाज़ रखी है, जिसमें जो रोशनी की उम्मीदें हैं वो सारी की सारी मुनक़ते हो जाती हैं। इसके बाद जो चौथा दर्जा है तग़य्युर का, उसके बारे में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि उसके बाद चौथा दर्जा ये है कि जब आपको बला आप पे वारिद हो जाती है, आप बिल्कुल तारीकी में घिर जाते हो और जो वारंट पहले इशू हुई थी, उसके बाद आपको बला के करीब कर दिया गया था, उसके बाद अब अल्लाह ताला अब जो हाकिम वक्त है वो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना देता है और आपको सज़ा का फ़ैसला आप सुनते हो और आपको पुलिसमैन के हवाले किया जाता है कि उसको अब सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा दे देनी चाहिए। तो इसके बिलमुकाबिल में अल्लाह ताला ने इशा की नमाज़ रखी है, जिसमें पूरा अंधेरा छा जाता है और आपकी रूहानी ज़िंदगी पर भी अंधेरा छा जाता है, अंधेरा आपको इहाता कर लेता है। और 5वां तग़य्युर जो है वो हुज़ूर ये बयान फरमाते हैं कि उसके बाद एक मुद्दत मदीद तक, एक लंबे अरसे तक जब आप उस इब्तिला में रहते हो, उस तारीकी में रहते हो, फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, वो चाहती है कि इस बंदे को मुखलिसी इनायत फरमा दे, तो उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने फिर फजर की नमाज़ रखी है, जिसके बाद जो है ना रोशनी तुलू होती है, तो अल्लाह ताला इंसान को मुखलिसी अता करता है। तो नमाज ही वो चीज़ है जो बलाउन से मुखलिसी अता कर सकती है। और आखिर में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी नसाया बयान फरमाई है, जिसमें आपने मुल्क के गद्दी नशीनों, औरतों को और दौलतमंदों को नसीहतें फरमाई है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये किताब यानी कश्ती नूह, जिसका नाम दावतुल ईमान भी है और तक़वियतुल ईमान भी है, इसके पढ़ने की हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने हमें बारहा तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस किताब को बार बार पढ़ने वाले हों और इसके नतीजे में हम अपने अंदर अमली तग़य्युरात पैदा करने वाले हों। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।